નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છે બે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે સમગ્ર દેશભરના રાજકારણમાં। એક તરફ કેન્દ્ર સરકારની એક રાજનીતિ સમીકરણ અલગ જોવા મળી રહ્યા છે, તો બીજી બાજુ રાજ્ય સરકારોના પણ જે રાજકીય સમીકરણો છે તે પણ અલગ જોવા મળી રહ્યા છે। એટલે કે બંનેમાં વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે। ઘણા બધા બીજેપી શાસિત રાજ્યો હોય કે પછી બીજેપી વિરોધી રાજ્યો હોય અને એની સામે કેન્દ્ર સરકાર હોય કે જે બંનેની રાજનીતિના સમીકરણો કંઈક અલગ જોવા મળી રહ્યા છે, કંઈક વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે। એવામાં ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે 2021 પછી 2022નું જે વર્ષ છે તે ચૂંટણી વર્ષ માનવામાં આવી રહ્યું છે। ઘણા રાજ્યોમાં ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવશે, એટલે કે વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવશે અને આ ચૂંટણીના વર્ષ પહેલાં જ વરિષ્ઠ અને અનુભવી નેતાઓના પક્ષ પલટા જોવા મળી રહ્યા છે। ઉત્તર પ્રદેશની અંદર કોંગ્રેસના સૌથી વરિષ્ઠ અને અનુભવી નેતા એવા જીતેન્દ્ર પ્રસાદ છે કે જેઓ બીજેપીમાં સત્તાવાર રીતે જોડાયા છે, જેને કારણે રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા ઘણી પ્રતિક્રિયાઓ પણ આપવામાં આવી છે। હરીશ રાવતે જણાવ્યું છે કે જીતેન્દ્ર પ્રસાદ જ્યારે બીજેપીમાં જોડાયા છે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર, ત્યારે એમના માટે એક થપ્પડ સમાન પરિસ્થિતિ છે। આ પ્રકારનો એક થપ્પડ મારવામાં આવ્યો હોય તેવું હરીશ રાવતે જણાવ્યું હતું। બીજી બાજુ ચર્ચા એ કરી રહ્યા છે કે પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજેપીમાં અત્યારે હલચલ જોવા મળી રહી છે, કારણ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પતી ગઈ છે, પણ ચૂંટણી પત્યા બાદ પણ બીજેપી અત્યારેમાં ખટરાક જોવા મળી રહ્યો છે। બીજેપીના કેડર બેઝના જે નેતાઓ છે એ નેતાઓ ફરી પાછા ટીએમસીમાં ઘર વાપસી કરતા નજરે પડી રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે આજે મુકુલ રોય છે કે જે પણ આજે ટીએમસીમાં સત્તાવાર રીતે પાછા ફર્યા છે, એટલે કે પોતાની ઘર વાપસી કરી છે। આ બંને રાજ્યોની રાજકીય સમીકરણની ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને આ પક્ષ પલટાની જે મોસમ જોવા મળી રહી છે ત્યારે ચર્ચા એ કરી રહ્યા છે કે આ રાજકીય વ્યક્તિત્વનો અંતરાત્માનો અવાજ જાગ્યો છે અને એટલા માટે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે અંતરાત્માનો આ રાજકીય અવાજ માનવામાં આવી રહ્યો છે કે સમયાંતરે આવા નેતાઓને કરતા હોય છે। મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે આલોક મહેતા કે જેઓ દિલ્હીથી જોડાયા છે, વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, યોગેશ શોડકર કે જેઓ રાજકીય વિશ્લેષક છે, ગુજરાતથી જોડાયા છે, અને ડોક્ટર રમેશ વર્મા જોડાયા છે કે જેઓ ઉત્તર પ્રદેશથી જોડાયા છે, જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, અને સાથે કૃષ્ણકુમાર દાસ જોડાયા છે कि जो पश्चिम बंगाल થી જોડાયા છે कि जो પણ वरिष्ठ पत्रकार છે। आप चारों નું स्वागत है चर्चा में। आप सभी का स्वागत है डिबेट में। आलोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आलोक जी, आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद कितना बड़ा परिबड़ काम कर रहा है वहां पे? कि जिस तरह से एक राष्ट्रीय राजनीति का एक असर होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें होती है। विधानसभा के चुनाव तो है ही, लेकिन अभी देखिए कि इसी विधानसभा चुनाव जो 6 महीने बाद करीब होने वाला है, जी उसका परिणाम पूरे देश में आगे वाले लोकसभा के चुनाव पे पड़ेगा। जी आप गुजरात के चैनल के इतने वरिष्ठ संपादक हैं, हमारे और भी योगेश जी भी और सब लोग जानते हैं जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स काम करते हैं, वो कभी भी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स पे काम नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एक्सरसाइज चल रही है वो यूपी को तो ठीक करने की बात है ही जी के साथ, और अभी भी जो अभी मेरी सूचना है आप लोगों को मिल रही होगी, अभी फिर से प्रधानमंत्री के घर पर बैठक हो रही है जिसमें नड्डा जी है, अमित शाह जी है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उसका क्या असर हो, उसके अलावा दूसरे जो कुछ परिवर्तन जो होना है वो बार जल्दी परिवर्तन नहीं करते हैं जी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति ये सही है कि वहाँ संतो योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 साल जो राज किया है उसमें कई विधायक भी नाराज है, कुछ छोटी पार्टियां नाराज रही है, कुछ थी, उसको एक जगह इकट्ठा हो गया। तो 15 दिन से जो एक्सरसाइज हुआ था उसका निचोड़ निष्कर्ष हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में सामने आ जाए। सही है, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज बड़े संभल करके पहले नीचे के स्टेज पर हुआ, जाकर के प्राइम मिनिस्टर से उसको दिखा दिया गया, उनका जो अपना पहले से भी उनकी बातें उन तक पहुंची थी। तो मंत्रिमंडल में चेंज हो, उनमें कौन को बदला जाए, लेकिन ये जो धारणा मीडिया में है, मैं थोड़ा सा कहकर आगे छोड़ दूंगा अपनी बात। देखिए ये कहना कि योगी विद्रोह कर रहे हैं और वो टक्कर देने लगे, वो सब गलत है। ये खाली एक अंदर का एक वैसा रहता है कामकाज जिसमें गलत फहमी मीडिया के, सोशल मीडिया आजकल जो आ गया है, ट्विटर उसकी वजह से हो रही है, भ्रम पैदा होता है, लेकिन टकराव नहीं है। कंट्रोल की जरूरत है जो करने की कोशिश हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा योगेश जी, आपको क्या लग रहा है केंद्र की राजनीति और दूसरे स्टेट की राजनीति में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको योगेश जी? खास तो डिफरेंस अभी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वर्चस्व है वो एक या दूसरी तरह से कम हो रहा है। जैसे बंगाल में अभी जो इलेक्शन हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी जो सोचती थी कि हमें इतनी सीट मिलेगी, उतनी तो नहीं मिली, लेकिन पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ न कुछ ऐसी बात हो गई कि जो लोग टीएमसी से बीजेपी में आए थे वो अपने घर वापसी कर रहे हैं, और वहां का बंगाल का जो अभी चल रहा है उसकी असर पूरे भारत में हो रही है कि मोदी जो चाहे उसका चाणक्य, अमित शाह जो चाहे वो इलेक्शन जीत सकते हैं, वो अभी नहीं रहा।
तो अच्छा, यानी कहीं ना कहीं मोदी वेव अभी कम हो रहा है। अभी ओके। यूपी की बात करें तो जी। यूपी में भी मोदी के खास जो है पॉलिटिशियन, जी। उसको योगी जी को, हम्म, आदित्यनाथ योगी जी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन सही है। अभी ऐसा लगता है कि योगी भी वो मोदी के साथ कुछ न कुछ झंझट में पड़े हुए, कुछ न कुछ बिल्कुल। डिफरेंसेस उनके बीच में हुए। जी जी। एपी शर्मा को वहां जो हाँ। भेजा, अभी यस। वो जितिन प्रसाद जो अभी जी वहां जी। आ रहे, तो जी। जैसे अब ब्राह्मण लोग का कुछ न कुछ अभी बढ़ रहा है कद, तो योगी का भी जो है वो कुछ न कुछ कम हो रहा है, ऐसा जी। लगता है। बिल्कुल। इसीलिए मोदी हम्म। अभी 2 दिन, योगी 2 दिन से दिल्ली में है। हम्म। दिल्ली में अमित शाह के साथ बात किया, हाँ। यस। नड्डा जी के साथ बात किया, बिल्कुल। मोदी के साथ बात किया। वो जी। उसमें क्या बात हुई क्या नहीं वो बाहर आएगा, तब हम्म। की बात है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जी। कुछ न कुछ पक रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में इलेक्शन आ रहा है, सही है। पंजाब में भी इलेक्शन आ रहा है, जी। गुजरात में भी इलेक्शन आ रहा है। जी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हम्म। कोरोना के हिसाब से हेल्थ बिल्कुल। सर्विस, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हम्म। लोगों में कुछ न कुछ असंतोष है, जी जी और जी। दूसरे भी और भी कोई कारण है। तो जी। भारतीय जनता पार्टी को अभी से उसका हम्म। कुछ डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। सही ये बात है। तीनों राज्य की बात है, ओके। पंजाब, गुजरात और यूपी, यस तीनों यस। में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, कृष्ण कुमार दास जी हमारे पास साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, मेरा सवाल ये रहेगा पश्चिम बंगाल के लिए। पहले तो चुनाव हुए, इससे पहले टीएमसी से मुकुल रॉय और टीएमसी के बहुत सारे नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, और अब चुनाव खत्म होने के बाद वो घर वापसी कर रहे हैं। उसके पीछे की खास वजह क्या हम बोल सकते हैं? क्या है, हमको तो एक बहुत बड़ा अवसर मिला आज उत्तर जी। प्रदेश और दिल्ली से दो वरिष्ठ पत्रकार का साथ सही बात है। बात करने का। ये बहुत बढ़िया सौभाग्य जी। है मेरा। हाँ बिल्कुल। सारे टाइम लास्ट 2 इयर्स में हम तो इसी चैनल में हम आया, लेकिन इतना डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट हाँ। का ओके। पत्रकार के सही बात। साथ मिली। ये जी उन जी जी। दोनों को हम बधाई देता है मेरा तरफ से, बंगाल का तरफ से। जी जी जी। हाँ। क्या है बंगाल का स्थिति अभी, क्या है अभी अभी ने हम्म। जो जोगेश जी ने बताया, एक हम्म। खास बात बोल दिया है। हम्म। यहाँ पर मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ नहीं आए, जी। सारी टीम यह अप्रैल, मार्च और अप्रैल 2 महीना यहाँ जी। पर वो तो कैंप किया। हम्म। मोदी जी ने यहाँ पर बहुत सारा मीटिंग किया है, तो जी। बोलता है कारपेट बम्बिंग किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में किया है, इतना टाइम देने का बाद यहाँ का रिवर्स हो गया है, रिवोल्ट कर दिया है बंगाल का। जी जी। हम लोग पत्रकार ये मालूम हो गया 2 महीने पहले जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, तब हमको मालूम होता है बीजेपी 120 से ज्यादा सीट मिलेगा। सही बात है। लेकिन इलेक्शन खत्म होने का बाद हम हम्म। लोग देखा है, हम लोग सब यहाँ पर जो हाँ। यस। वोट इलेक्शन का बाद जो रिजल्ट आया है, जी। तो उससे तो हम लोग तो ये फीलिंग हो गया, तो ये 70 और 80 सीट मिल सकता है, देखा है तो ये तो हो गया। हाँ, लेकिन 75। क्या है, क्या खास बात है, क्या बीजेपी हम्म। ने यूपी में और हम्म। हिंदी बेल्ट में जो इक्वेशन हाँ। यस। वह या वह जो इक्वेशन दे दिया है, वह जो स्टाइल है, जो ट्रम्प कार्ड खेला है, वो यहाँ बिल्कुल। पर भी जात पात भी ट्रम्प कार्ड खेलना चाहता है, यहाँ पर भी रिलीजियन का ट्रम्प कार्ड खेला है। लेकिन नहीं ये नहीं, कृष्ण कुमार जी, पहले ये बताया जा रहा था कि चुनाव से पहले बीजेपी है इस नेताओं की फाइल दबा कर रखती थी, या कुछ प्रलोभन दिया जाता था, इसलिए वो बीजेपी में जाते थे। लेकिन अब वापस टीएमसी में आने की वजह क्या है? कि ममता बनर्जी अब दबाव कर रही है क्या? किया है 2 दिन पहले राकेश टिकैत ने किया, कलकत्ता आया है और हाँ। यस। ममता का साथ मीटिंग किया है। जसवंत जी सिन्हा ने जी। ये दोनों मीटिंग करके बोल दिया है, और क्या है, और जो सारी जो नॉन बीजेपी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है उसके हाँ साथ एक बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म बना रहेगा। और हाँ। क्या अभी मिसल स्टार्ट हुआ है, वो राकेश टिकैत ने बोला है, और जो स्टालिन ने बोला है हाँ। यस। साउथ इंडिया से, ये दोनों जी। ही बोला है जो क्या ये अभी मोदी के बारे में, मोदी का एंटी मोदी एक प्लेटफॉर्म बनाओ। ममता विपक्ष उसका को एकजुट बारे करो। में पेश हो रहा है। इस यस पर यस यस। क्या है, जो टीएम बीजेपी का लोकल पीपल है, लोकल एमएलए है, लोकल लीडर है, वे वो भी अभी नाराजगी है। कर रहा है। जी जी जी। इसलिए क्या है, ममता ने खास लीडर है, ये ओके। जो दिल्ली से आया लीडर, ये लीडर पर भरोसा नहीं कर रहा है, ममता पर भरोसा कर रहा है।
इसलिए सही बात। बीजेपी का घर अभी अभी तोड़ रहा है। आज जी, तो मुकुल राय ने, जो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया, अब वो भी अब वापिस आ गए। के साथ वो तीनों टीएमसी का घर वापस कर दिया है। ओके। और क्या है, ममता ने आज ये दावा किया है कि जी, क्या और ज्यादा एमएलए और एमपी, बीजेपी का एमएलए एमपी, बीजेपी का लीडर, ओके। वो अभी अभी तुरंत ज्वाइन सही करेगा। बात है। यस यस। ओके, डॉक्टर रमेश वर्मा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। अच्छा रमेश जी, मेरा सवाल ये है कि जितिन प्रसाद अब बीजेपी में क्या जुड़ गए कि राजकीय बौखला आ गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? हाँ बिल्कुल, जो है जितेंद्र प्रसाद जुड़े हैं और ये मान करके कि वो जी। ब्राह्मण नेता के रूप में उन्हें ओके। प्रस्तुत किया जाएगा, सही बात। क्योंकि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण इस समय बहुत नाराज है। जी। उसको बैलेंस करने के लिए जितेंद्र प्रसाद को लाया गया। हालांकि जितेंद्र प्रसाद को लाने पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा बहुत नाराज है। वो कह रहा है क्या जी। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के नेता नहीं थे? और सही फिर बात है। अभी ये कहा गया था कि भाई अब हम किसी बाहरी व्यक्ति को लेंगे नहीं, आप जितेंद्र प्रसाद को लेकर के आ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ महेश चंद्र पांडे, हृदय नारायण दीक्षित, सतीश द्विवेदी जैसे तमाम ब्राह्मण नेता हैं और जिनकी अपनी फॉलोइंग है। लेकिन उसको इधर किनारे करके जितेंद्र प्रसाद को आप ले आए और अब जितेंद्र प्रसाद को हम मंत्री भी बनाने जा रहे हैं। सही बात है। तो इस बात को लेकर के बीजेपी के अंदर भी अंतर्द्वंद बहुत तेजी के साथ शुरू हो गया है। वाही रूप से भले ही, पर रमेश जी, योगी जी को दिक्कत क्या है? योगी जी को दिक्कत कहाँ है जितेंद्र प्रसाद से? देखिए, योगी जी को दिक्कत ये है कि योगी जी जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं, वो एक हिंदुत्व का चेहरा बन गए हैं और वो मानते हैं कि अब उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब वो इस चीज को नहीं मानते हैं कि ब्राह्मण नाराज है हमारे कारण। वो तो कहते हैं हमने अपराधियों को वो किया है। लेकिन जो अभी 1 महीने के दौरान संघ ने और जो केंद्रीय नेतृत्व में बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह प्रभारी, इन सब ने जो बैठकें की है, उसका लब्बो-लबाब यही निकला है कि ब्राह्मण भी नाराज है यहाँ पर जो है। और उसका कारण एक और देखिए, जो सबसे बड़ा जो बैकवर्ड वोट बैंक था और दलितों का नाराज हो गया। इसलिए अभी जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ है वो इन्होंने कहा था सेमीफाइनल है और उस सेमीफाइनल में 75 जिले अपने उत्तर प्रदेश में है, एक जिले में भी जिला पंचायत में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। अच्छा रमेश जी, एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा मैं। उत्तर प्रदेश में वडाप्रधान नरेंद्र मोदी योगी से नाराज चल रहे हैं कि योगी जी नरेंद्र मोदी से नाराज चल रहे हैं? देखिए, अब इसमें तो असल में बात यह है कि गुजरात कैडर के एक नौकरशाह मिस्टर अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश लाया गया और वो मोदी के बड़े खास थे। और ये हुआ जैसे ही उनको एमएलसी बनाया गया, ये हुआ डिप्टी सीएम बनना है, बड़ा ओहदा मिल रहा है। लेकिन भाजपा का एक वर्ग उससे बिल्कुल किनारे हो गया, जिसके कारण मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मोदी जी ने जानबूझ करके उनको वाराणसी भेजा अपने संसदीय क्षेत्र में। वहां पर उन्होंने जो कोरोना के लिए काम किया उसकी मोदी ने बड़ी तारीफ की कि वाराणसी का मॉडल बहुत अच्छा है, इसको अपनाया जाना चाहिए। लेकिन जो योगी है, योगी एक नहीं चाहते हैं कि उनके पैरों में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो। ये भी हुआ कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, अगर न डिप्टी सीएम बनाया जाए तो मंत्री बनाया जाए, अगर मंत्री बनाया जाए तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर, गोपनीय अपॉइंटमेंट जैसे विभाग दिए। योगी इसको नहीं चाहते हैं, इसलिए रमेश जी 2022 की विधानसभा की अगर चुनाव की बात करें तो चेहरा योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं, योगी जी ही चेहरा रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं है, आपको बताते हैं। हालांकि अब वहां के चुनाव की बागडोर अमित शाह ने संभाल ली। योगी जी का कहा कुछ होता ही नहीं है वहां पे। तो जैसे मैंने ये सुना है और ये भी समाचार मिलते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी को भी अगर सिलेक्ट करते तो दिल्ली से किया जा रहा है, योगी जी की बात पूछी भी नहीं जाती, उनका जो सूचन है वो भी लिया नहीं जाता और दिल्ली सिलेक्ट करती है सब कुछ। हाँ, तो मैंने बताया ना कि दिल्ली अब सब कुछ कर रही है। अमित शाह ने चुनाव की बागडोर संभाल ली है। योगी से सहयोगी दल, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर, ये सब नाराज हो गए थे। अमित शाह ने कल ही अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की, उनसे बातचीत की, संजय निषाद से बातचीत की, जो निषाद पार्टी, इन सबको जो पुराने सहयोगी है इनको सबको जोड़ने का काम किया है। और एक राजभर पार्टी है, उनको भी जोड़ रहे हैं। हालांकि राजभर ने आज उसका खंडन किया कि नहीं, हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन
जो 1977 में जो जातीय समीकरण अपनाया था बीजेपी ने, वही जातीय समीकरण अब फिर निभाने जा रही है। अमित शाह ने जो प्रयास किया और अमित शाह ने जो है बागडोर संभाल ली है। ठीक है रमेश जी। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर केंद्र और राज्यों की हम बात करते हैं तो मैंने शुरुआत में बोला था कि बीजेपी शासित जितने राज्य है वो तो बात अलग है, लेकिन बीजेपी जो विरोध में राज्य चल रहे हैं उनका और केंद्र के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा देखने को मिल रहा है, या फिर उनके बीच में बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही है। पर सवाल मेरा अब यहाँ पे भी है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी दिक्कतें दिखने को मिल रही। कर्नाटक में येदियुरप्पा के ऊपर भी दबाव देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी दबाव देखने को मिल रहा है। क्या वजह लग रही है आपको? मैं तो इसीलिए जो पुराने स्कूल का हूँ, इसलिए आपको कहूंगा कि कांग्रेस के रिजीम में या जो पार्टी सत्ता में, तो कांग्रेस और बीजेपी कहना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर आई है जी, कि कब ऐसा राज्यों में नहीं होता था। तब मैं तो आपको एक उदाहरण बता सकता हूँ कि जी का नाम यदि आपने सुना हो, इंदिरा गांधी के खास मंत्री भी रहे, सही बात रहे, उन्होंने बाकायदा मेरे पास आज भी क्लिपिंग रखी है। जब उनके चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश में श्यामाचरण शुक्ला थे, कहा कि अली बाबा 40 चौर की सरकार है। आज किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात कहने वाला किसी प्रदेश में नहीं, कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी, या जैसे आप कहते हैं कि गुजरात में कुछ चुनाव है, पंजाब में भी है, तो गैर भाजपा राज्यों में तो निश्चित रूप से ज्यादा और चैलेंज है प्रतिपक्ष के रूप में। लेकिन अभी वहाँ चुनाव नहीं है। पंजाब में चुनाव है तो पंजाब में भी अकाली है और बीजेपी वहाँ कोई सरकार नहीं, लेकिन यूपी ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और पूरा ध्यान इसलिए, लेकिन आसपास के प्रदेश, मध्य प्रदेश का भी वहाँ जाति का असर होता है, वहाँ भारतीय भी हिंदुत्व की प्रतिनिधि थी। सही बात है। योगी आदित्यनाथ से मंदिर का तो काम पूरा हो रहा है, मंदिर तो कोई झगड़ा बचा नहीं है जिसके बल पर पहले चुनाव लड़े गए। अब इसलिए हिंदुत्व का चेहरा संघ चाहता है जी। बीजेपी अपने ढंग से ये चाहती है कि सबको, यदि आपको बलसंख्यक भी 18% यदि वोट है, तो वो दूसरी तरफ भी जाए तो दूसरे लोग जो जातियां हैं जी को जोड़े, और उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है जी, हरियाणा है, इन सब राज्यों को भी समावेश कर। आलोक जी, इसका मतलब क्या समझने का, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। अभी जैसे रमेश जी ने संघ की बात करी, तो योगी जी और नरेंद्र मोदी जी और संघ, इन तीनों के बीच में क्या इक्वेशन बैठ रहा है? क्योंकि मोदी जी है वो योगी जी को सुनते नहीं है और अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और संघ की भूमिका क्या रहेगी अब दोनों के बीच में? आलोक जी, देखिए, जो नजदीक से जानते हैं वो जानते हैं कि इस समय संघ, चाहे दत्तात्रेय जी बने और मोहन भागवत जी संचालक हैं, मोदी जी के साथ बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, जो कभी अटल जी के साथ भी नहीं थी। अटल जी से भी कई चूक नाराज थे, संघ के संचालक से भी उनके मतभेद थे। बिल्कुल। बैठक तो बहुत ही उखड़ी हुई थी जी। ये कहना मेरी का, देखिए, मीडिया के डिस्कशन के लिए और फेसबुक के लिए अलग बात है जी। नहीं है, हाँ, ये अंतर है। एक लिबरल चेहरा के रूप में रहना चाहते हैं, वो वैसा कट्टर भी नहीं। पर आलोक जी, अभी मोदी जी ने और अमित शाह ने संघ को, मोहन भागवत जी को खाने पे बुलाया और उन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। खाली खाने पर बुलाया और नहीं गए, मैंने इसे कहा कि मैं उसके बाद विस्तार से नहीं टिप्पणी करूंगा। मेरा मानना है कि बाहर दिखना कि देखो हम संघ कुछ, हमें नहीं कुछ कह रहा है, संघ कहता हम, बिल्कुल, ये दिखाना भी जरूरी है ना। जी, सही बात। प्रोग्राम से पहले डिस्कशन मान लो हो गया कि डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, हम सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा कर, हम दिखाएंगे कि हम तो अलग अलग दिल्ली। पर आपके मुताबिक योगी जी का प्रभाव पड़ेगा संघ पे या नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी जी को आप मुझसे ज्यादा शायद वहां रह करके जानते हैं, सिर्फ उनकी चलेगी। योगी जी तो उनके, आज योगी जी तो आपको याद नहीं है, गोरखपुर के एक चुनाव क्षेत्र में जहां उनका मठ है जी, वहां उनके वोट से हार गए थे पिछली बार। बिल्कुल। ये नहीं, योगी जी अपने बल पर नहीं है, जो कुछ है पार्लियामेंट में जीतता वो गलत चीज है जी। 250 आदमी जीत के आते हैं प्रदेशों से, इसलिए वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ठीक है, लेकिन वो कोई मास लीडर होकर के खाली अपने बल पर मोदी जी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। ओके, वो अमित शाह जी के नामिनी है, बस एक बात मान लीजिए, नॉमिनी ऑफ अमित शाह। ओके, मोदी जी ने उसको अप्रूव किया है और अभी भी इसीलिए उनको चला रहे हैं कि हमने बनाया है तो हम इसको हटाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा योगेश जी, मेरा सवाल ये कि अगर वहां पे उत्तर प्रदेश की बात जैसे रमेश जी ने बताई, तो संघ की भूमिका पे मैंने सवाल किया, तो एक शक्यता हम सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, जैसे कि वहां योगी को सुनना नहीं, नरेंद्र मोदी जी सुनते नहीं है, और संघ की भूमिका क्या रहेगी? संघ योगी जी को सुनेगा या मोदी जी को सुनेगा? आपके मुताबिक क्या लग रहा है योगेश जी? अभी देखो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई जी, तो फिर संघ की भूमिका जो है वो कम हो गई। बराबर, संघ की बात सुने, वैसे तो
मोदी जी संघ के प्रचारक थे, संघ से ही आए पार्टी में, संघ ने भेजा। फिर भी अभी जो परिस्थिति ये है कि अभी सत्ता में सब आ गए तो अभी संघ की भूमिका कम हो गई, संघ का सुनने वाले भी कम हो गए। और मैंने देखा है कि संघ भी अभी अपने सत्ता से थोड़ा दूर रहकर अपनी जो बात है वो थोड़ी सी कहते हैं, लेकिन कोई प्रेशर नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। अभी ये भारतीय जनता पार्टी, संघ, योगी वगैरह की बात आप देखो तो योगी जी वैसे 5 बार संसद में चुन के आए हैं, तो इतना उनका प्रभाव है, उतना फॉलोइंग है। और अभी गोरखपुर में उनका जो अभी चल रहा है वो अपना जो आश्रम है उसके आजू बाजू की जगह खाली करवा के कुछ कर रहे, तो वहां भी अभी योगी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने मिली कि भी योगी से सब नाराज है। और अभी पूर्वांचल की रचना करने के बारे में भी बात हो रही है, जिसमें गोरखपुर भी आ जाएगा तो यूपी से गोरखपुर भी दूर हो जाएगा। ये पूर्वांचल की बात से भी कुछ इसमें गड़बड़ी हो गई है। लेकिन मेरा तो अभी एक राजकीय विश्लेषक की ओर से कहना यह है कि पूरे भारत में अभी पूरा जो अपना पॉलिटिक्स है, राजकारण है, वो अभी ठीक से नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात तो हमने अभी की, कांग्रेस की भी बात करो तो कांग्रेस में भी अभी न तो कोई राष्ट्रीय प्रमुख है, न तो कोई इसका चल रहा है। अभी राजस्थान में देखो क्या हो रहा है, सचिन पायलट की बात सुनिए। पंजाब में क्या हो रहा है, कैप्टन और सिद्धू के बारे में। जहां भी देखो वहां सभी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। सही बात है। सीधा चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। अभी 3 बड़े राज्यों में इलेक्शन आ रहा है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी आ रहा है। तो अभी चिंता करने जैसी बात भारत के लिए ये है कि कोई भी पार्टी अभी ठीक से नहीं चल रही है। अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का कुछ चल रहा है, लेकिन वो तो एक छोटा सा स्टेट है। जी, स्टेट भी नहीं है मैं तो बोलूं, लेकिन और भी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कुछ ठीक से चल रहा है। तो भारत के लिए, ये लोकशाही के लिए चिंता की बात है कि सभी पार्टियों में ठीक नहीं चल रहा है। मोदी का एक वेव चल रहा था, अभी लगता है ऐसा कि ये जैसे कोरोना का वेव अभी कम हो गया, ऐसा मोदी का वेव भी कम हो रहा है। तो ये चिंता करने के लिए लोकशाही में ये अभी चिंता करने जैसी बात हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा आलोक जी, शॉर्ट में पूछना चाहूंगा आपको, एक ब्रेक लेंगे, उससे पहले मैं आपसे छोटा सा जवाब मांग चाहूंगा कि अगर मोदी जी की वेव कम हो रही है तो 2024 की क्या हालत होगी फिर? कि ये जो अभी कहे योगेश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक अस्थिरता का माहौल बनने का खतरा रहता है। और अभी 2024 की घोषणा इसलिए नहीं करते कि आने वाले समय में, देखिए ये सही है कि अभी थोड़ी कमजोरी आई है, साल के चुनाव का बड़ा झटका लगा है। इसको सुधार करने के स्टेज में हो सकता है कि 6 महीने अभी भी कोरोना का 3rd वेव आ जाए, ज्यादा हो, अराजकता पैदा हो। बिल्कुल, मैं तो एक और बात मानता हूँ, यदि मैं प्रतिपक्ष के लोग बहुत ज्यादा हमला कर रहे हैं, क्या 6 महीने बाद जो हमेशा मोदी जी कहते रहे एक देश एक चुनाव, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? मतलब मेरा तो कहना है कि भाई यदि बहुत ही ऐसी चुनौती है, सही बात है, चुनाव में, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि दूसरी छोटी पार्टियां, उनका कोई इतनी सारी पार्टियां होने की वजह से एक देश एक चुनाव की बात तो बहुत दिक्कत। मोदी जीत के आ जाएंगे और फिर से मोदी जी का राज 5 साल के लिए हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, जैसे मिसेस गांधी करती थी, अचानक मध्यावधि चुनाव अगले साल के शुरू में कर दे, और तो इसी फॉर्मूला पे मोदी जी आगे बढ़ सकते हैं समग्र पूरे देश के अंदर। सही बात है आपकी। आलोक जी और कृष्ण कुमार जी, रमेश जी, थोड़ा समय यहाँ पे ब्रेक लेने का हो गया है। दर्शक મિત્રો, સમય થયો છે નાનકડા વિરામનો। મળીએ છીએ નાનકડા વિરામ બાદ ચર્ચા આગળ વધારીશું। વિરામ બાદ ચર્ચા કરીશું કે ઉત્તર પ્રદેશ અને બંગાળની રાજનીતિમાં એટલા મોટા કયા સમીકરણો ગોઠવાઈ રહ્યા છે અને દેશની રાજનીતિમાં અત્યારે સૌથી મોટો બદલાવ શું જોવા મળી રહ્યો છે, આ પક્ષ પલટો જે નેતાઓ કરી રહ્યા છે એના સમગ્ર દેશમાં પડઘા રાજકીય રીતે શું પડી શકે છે તેની પર ચર્ચા કરીશું, પણ એક નાનકડા વિરામ બાદ। સમીકરણો ગોઠવાઈ રહ્યા છે તેની પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે। बंगाल थी कृष्ण कुमार दास हमारे साथ जुड़ा है, उत्तर प्रदेशी रमेश वर्मा पण जुड़ाया है। अच्छा कृष्ण कुमार जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अगर पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय ने वापसी कर ली है तो मुकुल रॉय का टारगेट क्या रहेगा अब आगे के दिनों में? मुकुल रॉय आज पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा का बारे में वो 2 बात बोला जी। एक बोला भाजपा में मेरा कोई काम नहीं रहा है, सही बात है, वहाँ पर कोई काम का अवसर नहीं मिल रहा है। तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको कोई काम नहीं है। तो बोला भाई असेंबली इलेक्शन में उसको कोई काम करने नहीं दिया है जी।
जो बाहर से आया है बोला है दिल्ली से जो लीडर लोग आया है ये खुद काम किया है, हम लोग को कोई काम नहीं कर दिया, इसलिए ये बंगाल में रिजल्ट भाजपा का रिजल्ट खराब हुआ। ये मुकुल राय ने दावा किया, मुकुल राय ने बोला था, ये कोई रिपोर्ट नहीं, मुकुल राय ने बोला है, मुकुल राय ने बोला है। और ममता ने बोला है मुकुल को पहले जो काम करता था 2017 साल के, तो भाजपा को ज्वाइन करने का पहले 44 मंथ्स का बिफोर जी, तो वो जो काम करता अभी वे काम कर रहे हैं, उसको हम लोग सुना है, उसको ऑल इंडिया बेस पे पार्टी का काम देगा। उसके लिए क्या है जो इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन का तारीख है पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन के। ममता ने आगे भी क्या कर रहा है, ममता ने यह स्टार्ट किया, टारगेट किया है बंगाल में 42 सीट है और आसपास जो स्टेट है यहाँ पर करके कोई 50 सीट हो जाए तो ममता का, तो ऑल इंडिया लेवल में ममता का। कुमार जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति क्या रहेगी आगे के दिनों में 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखने चाहे तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं, ये ऐसा मैसेज जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस तरह की तैयारी कर रही है कि वो 2024 के पीएम का चेहरे के तौर पे आगे बढ़े? ये क्या है, ममता ने खुद उन्हें बोला है जो क्या हम लोग काम करेगा, हम लोग कोई लीडर नहीं है, हम लोग एक साथ में काम, हम बोला है ना थोड़ा पहले राकेश टिकैत ने आया है उसके साथ बात करने के लिए, और चुनाव का बाद स्टालिन का साथ और केरला का चीफ मिनिस्टर का साथ और 2-3 लीडर का साथ, चीफ मिनिस्टर का साथ उनका बात हुआ है। आम आदमी का पार्टी का तो चीफ मिनिस्टर के साथ उनका बात हर दिन चलता है। बोला है क्या वे एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, अपोजिशन सीएम का एक अपोजिशन ये बनाया, उसका साथ सोनिया गांधी का भी बात हुआ है। वे काम करके एक प्लेटफॉर्म बना के। कृष्ण कुमार जी, एक साल पहले भी ऐसा एक विपक्ष मिले थे, एकजुट मिले थे कि प्लेटफॉर्म पे मिले थे, कोई रिजल्ट तो दिखा नहीं अपने को। नहीं, थोड़ा बात राकेश जी ने, औलोक जी ने तो अच्छा बात किया है, बोला है कि मोदी जी का सब्स्टिट्यूट कोई लीडर अभी तक ऑल इंडिया में नहीं है, लेकिन हम बोलता है कि ममता ने एक कोशिश कर रहा है, ममता का प्लान है, कामयाब होगा कि होगा नहीं, 2024 का इलेक्शन में जनता ने बोल देगा, लेकिन ये ममता और अपोजिशन लीडर का ये प्लान है। ममता ने बोला है जो क्या है सारी के ये जो परमार का जो इश्यू है, ये जो कृषक का जो इश्यू है, राकेश जी का जो चाषी लोग मूवमेंट कर रहा है, इसको लेकर ये मूवमेंट करेगा, ये एक प्लेटफॉर्म बना के बोला ये पहला। आज भी ममता ने फिर बोला है, 2 दिन पहले नहीं बोला है, उसका ओनली 1 प्रोग्राम है 2024 में दिल्ली से भाजपा को हटाना, ये उनके क्लियर कर दिया है बराबर, और खुद को विकल्प बनना है ना। वे अभी तक तो नहीं बोला, लेकिन तो ठीक है जो बोलता है हम लोग नहीं खाएगा तो ये तो ज्यादा खाता है ना। ओके, यस ठीक है। रमेश जी, उत्तर प्रदेश की वापिस बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी मैंने आलोक जी से बात करी, जितेंद्र प्रसाद के आने के बाद बहुत सारी हलचल वहां देखने को मिल रही है। बीजेपी में योगी जी का कोई सुनने को है तैयार नहीं है, तो संघ कितना सुनेगा योगी जी को, क्योंकि योगी जी अभी दिल्ली में गए बैठक करने के लिए, मोदी जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले, इसका क्या परिणाम मान सकते हैं हम? नहीं, परिणाम ये है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि योगी जी का और संघ का, खास तौर से मोहन भागवत जी का सीधा संपर्क है। और ये बात भी हम आपको बता दें कि योगी कभी संघ वंग में रहे नहीं, लेकिन उनका जो हिंदुत्व का जो चेहरा है वो आरएसएस को बहुत पसंद आता है। और जो मुझे पता लगा है, पर रमेश जी ऐसा बताया जा रहा है, दिल्ली से संघ को ऐसा बताया जा रहा है कि योगी जी अब हिंदुत्व का चेहरा रहा ही नहीं है, और दूसरी बात ब्राह्मण वोट बैंक और ठाकुर में भी इतना प्रभाव नहीं रहा है योगी जी का, ऐसा संघ को बताया जा रहा है, रिपोर्टिंग दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। संघ देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो दिल्ली में कल और आज बैठक हुई है, ये भी योगी जी ये कहा जा रहा है कि बाकायदे मोहन भागवत से बातचीत की, और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था उसके बारे में उनको सूचित भी किया, और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में काम कैसे होगा। तब जो है संघ ने ही एक रास्ता निकाला, क्योंकि दत्तात्रेय घोष बोले पहले से ही इसमें सक्रिय थे, तो कहते हैं कि मोहन भागवत से जब बातचीत हुई उसके बाद ही ये रास्ता निकला कि अरविंद शर्मा को भी एडजस्ट कर लीजिए और आप उनको तब महत्व न दीजिए, लेकिन जितिन को भी कर लीजिए एडजस्ट। और उन्होंने ही जब ये रास्ता निकाला तब योगी जो है अमित शाह से मिले और मोदी से मिले हैं और नड्डा से मिले हैं, और संघ के कहने पर मिले हैं, इसका मतलब संघ के कहने पर मिले हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, मैं यही कहूँ।
जी 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 आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि खाली योगी जी पीएम से मिलने गए हो, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले या कुछ ही दिन में बात हुई थी उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने भी मुलाकात करी और मीडिया को ये बताया कि मैं नवाज शरीफ को नहीं मिला था, अपने देश के प्रधानमंत्री को मिला था। ऐसा भी जवाब मीडिया के सामने दिया था उद्धव ठाकरे जी ने। तो इस मीटिंग का हम परिणाम क्या मान सकते हैं? योगी जी मुलाकात करते हैं, उद्धव ठाकरे मुलाकात करते हैं, क्या परिणाम मान सकते हैं आलोक जी? देखिए, उद्धव ठाकरे का मिलना एक अलग चीज है महाराष्ट्र की राजनीति की दृष्टि से, जी और एक बाद में उन्होंने अलग से जो पहले या बाद में जो मुलाकात की है, जी देखिए व्यक्तिगत इसलिए कि वो हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए व्यक्तिगत रूप से मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, सही बात है। मेरा भी देखिए वहां पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप आए हैं महाराष्ट्र में, जी 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 ठाकरे परिवार भी संकट में है। जी जी आपको याद होगा शरद पवार जी हाँ, यस। से पहले अहमदाबाद या कहाँ पर एक गुजरात में ही जी 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 चुप जाकर के रात को 11 बजे अमित शाह जी से मिले थे। सही बात है। तो देखिए जब ऐसे कोई, मैं सीधे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन कुछ मामलों में व्यक्तिगत रूप से आदमी चाहता है कि कम से कम ऐसा Okay. करना हो कि जेल जाने में हमारे परिवार की नौबत आ जाए। जी 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 बिहार बिल्कुल सरकार बिल्कुल। में नरसिंह राव भी कभी नहीं चाहते थे कि वो जेल जाए, अदालत में मामले गए थे झारखंड जी, जी, मुख्यमंत्री और कई केसेस में। बड़ा से बड़ा नेता जेल को एक दिन भी देखना नहीं चाहता, ये सब कारण है। योगी जी का मिलना एक नहीं, अलग- पर आलोक जी, अगर उद्धव ठाकरे जी पीएम से मिल रहे हैं या अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं तो शरद पवार जी को अच्छा नहीं लगेगा ना? उनको तो लगेगा कि ये भी हमारा दूसरा दुश्मन खड़ा हो रहा है क्या? नहीं, शरद पवार जी खुद भी तो सरेंडर किए हुए हैं, मतलब कुछ हद तक कि मुझे रहने तो अभी जरूरत होगी तो मैं तो आपके साथ, मुझे सरकार पहले एक बार कभी समर्थन मिलने की कोशिश हुई थी, जी जगह भी आसानी से तो अब नहीं बीजेपी के साथ आएगी। बराबर। ये व्यक्तिगत मामले हैं जिस पर ये लोग मिल रहे हैं। योगी जी। आदित्यनाथ जी का मामला जैसे अभी कह रहे हैं, हाँ पूरा एक पार्टी को आगे रहते हुए अभी उनको ही चेहरा रहेगा। उनका जी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उन पर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। नियंत्रण में जो बहुत कड़ाई की है उस पर हाँ। जांचियां भी हुई है। नहीं तो आलोक जी, नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मोदी जी या दिल्ली से ऐसा क्यों हो रहा है कि योगी जी को सुनते ही नहीं है, और वहां पे मंत्रिमंडल की नियुक्ति हो या फिर एमएलसी की नियुक्ति हो वो दिल्ली से कर रहे हैं, देखिए बिना ये- योगी को पूछे? देखिए, ये ऐसा क्या सोनिया गांधी के समय में नियुक्तियां नहीं होती थी क्या? सही बात है। ये तो हाईकमांड जो होगा वो डिसाइड करेगा ना। हाँ। योगी जी उनके प्रतिनिधि हैं। तो योगी जी को बुरा लग रहा है कि उनको सुनते क्यों नहीं? उन्होंने संघ को भी बताया कि हमको सुनते भी नहीं है, हमको पूछते भी नहीं है। नहीं, वो अपनी मनमानी बहुत करते हैं, मैं आपको डिटेल अभी नहीं चर्चा करना अच्छा, चाहता। ओके। योगी जी अपने ढंग से कर रहे थे, कुछ मंत्री चाहते हैं कि उनको जो काम करना है वो करने दें, विधायकों की इच्छा थी वो पूरी नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। उनका शिकायत ये कि भाई ये लोग दबाव बनाते हैं, गड़बड़ ये करते हैं, जी जी मैं जी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन वो हाँ। अपराधियों पर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बोले जहां जी। जहां जिसको आप वो कहते हैं, जिस पर आरोप है कि वो हाँ, कहाँ से yes। आए हैं, विदेशी हैं, जी। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए हाँ वो जहां ऐसे अपराधी तत्व है जो समुदाय के जी पर जो कठोर कार्रवाई करते हैं वो एक संघ को भी सूट करता है। सही बात है। कि ऐसे जो चाहे वो गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, जी 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 चाहते हैं कि ऐसे जो तत्व हैं जो केवल उनको पोषित किया गया पार्टियों की जी। तरफ से अपराधी तत्वों को, उनको कुचला जाए, उनको सजा दी जाए। यस। इस मामले में योगी का 2 प्लस पॉइंट है। ये मैं नहीं मानता कि वो ओके। योगी नहीं सुन रहे हैं ना मोदी की नहीं सुन रहे हैं। अरे भाई अच्छा। अरविंद शर्मा यहाँ बैठ के जो कर रहे थे वहां बैठ के करेंगे। हाँ बड़े सही बात है, उत्तर प्रदेश में करेंगे, बात सही है आपकी। अच्छा योगेश जी, तो आपने सवाल पूछू परंतु रमेश जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आलोक जी ने बताया, तो एक सवाल ये हो रहा है कि योगी जी वहां जब चेहरा बने मुख्यमंत्री के तौर पे, उससे पहले मनोज सिन्हा का नाम था और 24 घंटे में योगी जी सामने आ गए। तो इस बार मेरी ये शंका है कि अगर चेहरा योगी जी रहेंगे लेकिन कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है एंड मोमेंट में। नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक बात हम आपको और बता दें कि बीजेपी में हाँ। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो योगी का समर्थक है। कारण है हिंदुत्व का कार्ड, ओके। जो इसके कारण मैंने कुछ बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की जी, और जी। मैंने कहा कि ये सब क्या मामला चल रहा है। हाँ। उन लोगों ने खुल करके कहा कि नहीं साहब, मैं बिल्कुल योगी के साथ पे हूँ, और ओके। वो कारण है उनका हिंदुत्व कार्ड। और ये माना जा रहा है कि जो 22 का चुनाव होगा उसमें भी ऐसा मुद्दा आएगा, क्योंकि कोरोना को लेकर के जो स्थितियां बनी है उत्तर प्रदेश में, उससे जनता नाराज है, जनप्रतिनिधि नाराज है, मंत्री नाराज है। लेकिन अब इसका मुकाबला कैसे होगा, तो निश्चित रूप से योगी सामने आएंगे और ऐसा कोई ना कोई राष्ट्रीय मुद्दा या हिंदुत्व का कोई ऐसा कार्ड भी खेलेंगे, ऐसा लोगों का मानना है, और ही मुद्दा बना करके चुनाव जीतने की बात करेंगे। सही बात है। अच्छा योगेश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी शासित राज्य है उसमें तो चलो सेंटर में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, तो कोरोना में कामगिरी जो करने वाली थी उसमें
दोनों का संकलन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहां पे बहुत ही दिक्कत देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, फिर ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, राजस्थान से अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं। तो ये कहां तक रुकेगा या फिर इसका रिजल्ट क्या आ सकता है योगेश जी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमेशा संकलन होना चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है। मगर ये कांग्रेस के टाइम पे भी दिखाई दिया था, आज बीजेपी के टाइम में भी दिखा दिया कि अपना जो पार्टी है वही जो राज्य में है और केंद्र में है तो ठीक चलता है, बाकी दूसरी पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है तो ठीक नहीं चलता है। वो कांग्रेस में भी हमने देखा था। लेकिन आज जो हुआ कि ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वैक्सीन मिलना चाहिए, रेमडेसिविर मिलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य थे उसमें सरल रीत से मिलती थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के बिना की, कांग्रेस की या किसी और के है, उनको नहीं मिलता है। ये कंप्लेन तो आती रही, और केंद्र ने ये भी कंप्लेन किया कि भी हम जो बेचते हैं उसका वेस्टेज जो नॉन बीजेपी स्टेट है उसमें ज्यादा होता है। जैसे छत्तीसगढ़ की बात हुई, राजस्थान की बात हुई कि हमने जितना भी वैक्सीन भेजा वो पूरा इसका इस्तेमाल नहीं हुआ और वेस्टेज हुआ। ये जो दोनों के बीच में तूता हो रही है वो एक स्वाभाविक है, लेकिन ये लोकशाही के हित में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, पर लेकिन स्टेट में और सेंट्रल में दोनों में बीजेपी है, और बीजेपी शासित राज्यों भी बोल रहे हैं कि केंद्र से हमको जो सहाय मिल रही है उसमें भी दिक्कतें आ रही है, टेक्निकली फॉल्ट हो रहे हैं। ये सारे तो बीजेपी शासित राज्यों भी बोल रहे हैं योगी जी। नहीं, कोरोना का जो सेकंड राउंड हुआ, सेकंड वेव हुआ, उसमें सभी स्टेट में तकलीफ हुई, और ये जो कोरोना का हुआ था वो इतना फास्ट संक्रमण हो रहा था कि सभी स्टेट में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पहले किसी ने प्लान नहीं किया कि ऑक्सीजन इतना चाहिए, और डॉक्टर लोग भी उसमें तकलीफ में थे कि ऑक्सीजन के बिना कैसे काम करे, रेमडेसिविर के बिना कैसे काम करे। और अभी जो वैक्सीन का चल रहा है, और सबको बता रहे हैं कि भी आप वैक्सीन लो, लेकिन वैक्सीन का जो काम चल रहा है इतनी तरीके से चल रहा है कि अभी गवर्नमेंट बोलती है कि दिसंबर तक सब हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है ये हो जाएगा। हाँ, सही बात। अच्छा कृष्ण कुमार जी, आपने बोला बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह की राजनीति कर रही है, तो मेरा एक सवाल है, क्या ऐसा प्लानिंग किया जा रहा है कि बीजेपी को हिंदी बेल्ट में आने नहीं देना है, और अगर आ गया जहां पे भी वहां से भी उसको निकालना है, इस तरह का माहौल खड़ा कर रही है बीजेपी, ये ममता बनर्जी? हम लोग समझ नहीं, फिर क्वेश्चन कर दीजिए। मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी की राजनीति वहां कैसे काम कर रही है? बीजेपी को हिंदी बेल्ट में नहीं आने देने की कार्यवाही कर रही है, या फिर बीजेपी हिंदी बेल्ट में जहां पे भी एंटर हुई है वहां से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है? क्या है, यहाँ पर जो बीजेपी ने क्या है 77 सीट ने पहले जीता जी, और क्या है अभी तो 2 सीट ने उसको रिजाइन कर दिया, लेकिन क्या है 2 एमपी लोग था, अभी तो 75 असेंबली में उसका मेंबर है जी। इसका जो लीडर है शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम का बहुत बढ़िया लीडर है, ममता को भी हराया। लेकिन क्या यहाँ पर अभी बंगाल का बीजेपी ने तो 2-3 ग्रुप में भाग हुआ है। एक तो दिलीप घोष प्रेसिडेंट, उसका ग्रुप चल रहा है, और एक ग्रुप है शुभेंदु अधिकारी का ग्रुप चल रहा है, और आज तो मुकुल राय का ग्रुप ने निकाल ही गया, और 2-4 दिन का पहले बाद तो मुकुल राय का जो साथी लोग है वो चला आएगा। ये तो ममता ने आज तो बोल दिया है। क्या है यहाँ पर बीजेपी लोग अभी इलेक्शन का बाद बीजेपी का लोग सारे घर में बैठ गया है। ये जो वर्कर पर कार्यकर्ता पर हमला हो रहा है वही लीडर लोग उसका पास नहीं जा रहा है। यहाँ से तो बीजेपी का और जो लोग इलेक्शन हार गया वो बोलता है कुछ। कृष्ण कुमार जी, लेकिन बीजेपी में से वापस आने का डर क्यों लग रहा है? यानी टीएमसी में वापस जो नेता लोग आ रहे हैं तो उनको ममता बनर्जी डरा रही है क्या वहां पे? क्या फिर पॉलिटिकल अगर हिंसा होती है तो उसपे उनको नुकसान जाएगा? नहीं, क्या है ये बीजेपी से टीएमसी लोग आ रहा है, पॉलिटिकल लोग आ रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर एंजॉय करने के लिए वापस आ रहा है। अच्छा, ये खास बात यह है, जब बीजेपी बंगाल में आता है तो ये कोई नहीं आता है और सब लोग तो मिनिस्टर होकर बैठ जाएगा। आज क्या है जो ये पावर में एंजॉय करने के लिए आ रहा है, और क्या इसका सारी जो पॉलिटिकली ये जो मोटिवेटेड पर्सन है ये पॉलिटिक्स का है, ये पॉलिटिकल है। आज ने बीजेपी का एमपी अर्जुन सिंह बाराकपुर का बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह ने सही बात बोल दिया है, बोले मुकुल नायक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। सही बात ये अभी टीएमसी का साथ था जब टीएमसी पावर में था, जब बीजेपी आने का
संभावना है, उस टाइम तो वे बीजेपी में चल गया, आज फिर टीएमसी में वापस गया और दुकान खोल दिया है। लेकिन क्या है, जो बंगाल में क्या है, बंगाल का बीजेपी के जो लीडर है, बंगाल का बीजेपी का लीडर का ममता का साथ, ममता का जो करिश्मा है, इसके साथ बीजेपी का करिश्मा, बीजेपी का जो लीडर है ये नहीं लड़ने सकता है। लेकिन क्या ये जो अभी जो राकेश जी बोल रहा है, क्या ये वैक्सीन के बारे में, कोरोना के बारे में, ये बंगाल में बीजेपी का बहुत नुकसान हो गया। क्या है, ये तो वैक्सीन नहीं मिल रहा है। ममता ने हर दिन बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लॉप है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्सीजन नहीं भेज रहा है, वैक्सीन नहीं भेज रहा है, इसलिए तो बीजेपी का अस्तित्व गया पर और खराब हो रहा है। बिल्कुल बंगाल का बीजेपी का स्थिति अभी अच्छा नहीं है, बहुत खराब हो रहा है। सही बात है। अच्छा रमेश जी, अगर जितेंद्र प्रसाद के आने की वजह से योगी जी नाराज चल रहे हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में, तो ये लड़ाई कब तक रहेगी और इसका नुकसान होगा बीजेपी को अगर ये दोनों लड़ते रहेंगे तो? नहीं, अब तो ये लगता है कि जो अमित शाह से और मोदी से और नड्डा से जो बातचीत हुई है उसमें मामला अब सुलझ गया है। एक दो दिन में स्थितियां भी सामने आएंगी, इसमें भी दो राय नहीं है। ये जरूरी है कि जो महत्व जितेंद्र प्रसाद को चाहते थे लोग देना वो न मिले, वो दूसरी बात है। लेकिन अब स्थितियां नहीं होंगी कि अब टकराव होगा, मनमुटाव रहेगा, जिसके कारण जो सियासी हलचल चल रही थी अब वो स्थिति थमेगी। पर रमेश जी कई राज्यों में और गुजरात में भी देखने को मिला है ऐसा कि अगर कांग्रेस में से आए हुए नेता बीजेपी में जुड़ जाते हैं तो वो जब चुनाव में खड़े रहते हैं तो लोग उनको पसंद नहीं करते। तो जितेंद्र प्रसाद में भी ऐसा होने की गुंजाइश है उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल। अभी कोई देखिए, जितेंद्र प्रसाद का ऐसा कोई भारी भरकम चेहरा नहीं है जो ब्राह्मण के नेता के रूप में ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये रोहैल का एक क्षेत्र है और वहां पर लगभग 28 विधानसभा क्षेत्र है, इनको मानना है। लेकिन अब देखिए ना, जितेंद्र प्रसाद अभी 2017 में विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। ये बात सही है कि 2004 में और 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता वो अपने पिताजी के कारण और मंत्री भी। लेकिन अभी जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ वो भी जितेंद्र नहीं जीत पाए। और हुआ ये कि इन्होंने भी एक ब्राह्मण एकता परिषद बना दी थी। नहीं, पर रमेश जी जैसे बीजेपी के हाथ से दिल्ली चला गया, दिल्ली आया नहीं हाथ में, पश्चिम बंगाल भी हाथ में नहीं आया, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो इम्पैक्ट करेगा उत्तर प्रदेश की चुनाव में 2022 के? हाँ देखिए, वहां दोनों बातें अलग है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है बड़ा इमोशनली है, ये भावनात्मक और धर्म के मुद्दे पर भी चल जाता है। बंगाल में ये नहीं होता है, केरल में ये नहीं होती है, तमिलनाडु में ये नहीं होती है। तो ये फर्क है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश या इसमें मध्य प्रदेश हुआ या बिहार, जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ तो ये चल रहा है, दिल्ली में नहीं चल पाता है। तो ये है तो जो बंगाल की स्थिति है और उत्तर प्रदेश की स्थिति है, दोनों बहुत भिन्न है। वहां पर तो देखिए के साथ लोग जी उत्तर प्रदेश और बंगाल अलग है। हाँ सही बात है। हिंदी बेल्ट यही मैं कह रहा हूँ, बहुत अलग है। बंगाल में वो मुद्दा नहीं चल पाया, उन्होंने बहुत चलाया कि राम। पर मेरा सवाल ये योगेश जी, मेरा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश बंगाल की रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कोरोना की बहुत बड़ी इम्पैक्ट देखने को मिली है। क्योंकि मोदी जी के से भी लोग नाराज चल रहे थे कि वहां पे भी मोदी जी खुद नियम का पालन नहीं करते, लोगों को सलाह देते हैं कि नियमों का पालन करिए। तो अगर ये 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो उसमें भी ये मुद्दा इम्पैक्ट करेगा योगेश जी? नहीं, इसमें देखिए अभी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो इनकी चुनावी रणनीति बनी है उसमें कहा गया है कि वर्चुअल मीटिंग करेंगे, अब वर्चुअल रैली करेंगे। अब वो खुल करके जो बंगाल में कर रहे थे वो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। और इनकी मीटिंगें जो है शुरू हो रही है जुलाई से ही, लेकिन उसमें सब में वो वर्चुअल जोड़ दे रहे हैं, वो एक खुले मैदान की रैली को जोड़ नहीं दे रहे हैं। ओके, अच्छा योगेश जी, मेरा सवाल आपसे है। योगेश जी, सवाल ये है मेरा कि जैसे शरद पवार एक्टिव हुए हैं, उस हिसाब से शरद पवार और पीके की आज मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, प्रशांत किशोर और शरद पवार। तो क्या लग रहा है 2024 की रणनीति बनाने के लिए ये मुलाकात हुई होगी योगेश जी? शरद पवार एक बड़े सेलिब्रिटी जैसे पॉलिटिशियन है, वो कुछ भी कर सकते हैं और उसको कब क्या करना मालूम है। अभी उनको लगा कि उद्धव ठाकरे मोदी जी से मिले तो शायद वो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाने का सोच रहे क्या, ये भी एक विचार आया होगा। तो शरद पवार ने पहले से सोच लिया कि ये कुछ होने से पहले मैं भी कुछ करूं, तो शरद पवार ने भी ये दाव खेला होगा। और
वहां पर शरद पवार के हिसाब से ही गवर्नमेंट चलती है, ऐसा आज तक तो हमने देखा है। तो शरद पवार को पूछे बिना उद्धव ठाकरे मोदी से मीटिंग करे, ये ठीक नहीं होता है। इसीलिए शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं, और शरद पवार तो बड़े होशियार पॉलिटिशियन है। योगेश जी 2024 के लिए ऐसा बोला जा रहा है, या फिर ऐसे लोगों को मैसेज जा रहा है कि मोदी जी के विकल्प पे कोई नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि धीरे धीरे 2024 के लिए शरद पवार भी आगे बढ़ रहे हैं, ममता बनर्जी भी आगे बढ़ रही है विकल्प के तौर पे? मोदी जी का विकल्प तो कोई है कि नहीं, लेकिन पीएम के लिए कितने लोग तैयार है? योगी जी भी तैयार है, ममता जी भी तैयार है, शरद पवार भी है, और उद्धव ठाकरे भी तैयार है, सब लोग तैयार है। तो इसमें मैं कुछ पिछले काल में ले जाऊं तो पहले एक बात थी कि एंटी कांग्रेस के विरोध में जो है उसका गठबंधन होता था। सही बात है। आज भाजपा का गठबंधन ऐसा हो रहा है, भाजपा का विरोध करने के लिए मोदी को हटाओ, ये एक गठबंधन हो रहा है, और 20 पार्टी 15 पार्टी सब मिलकर सही बात है। यस। अच्छा रमेश जी, ऐसा हो सकता है आगे के दिनों में देश की राजनीति में कि मोदी जी का विकल्प भले कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी सत्ता में से उनको निकालने की कोशिश में इतनी जबरदस्त रिजल्ट मिल सके कि सत्ता में से निकल जाए, क्योंकि जो विपक्ष अभी कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, कोई अगर ऐसा कोई मुद्दा है, फिलहाल तो नहीं है, अभी दिखता है, क्योंकि अभी निश्चित रूप से मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कोई नेता ही नहीं उसके ऊपर खड़ा पाया। लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी राजनीति, ये कोई कह नहीं सकता। अगर कोई विकल्प के रूप में शरद पवार भी चाहते हैं, ममता बनर्जी भी चाहती हैं, अगर ये लोग पूरे देश के विपक्ष को एक कर पाए और अपना मुखौटा प्रस्तुत कर जाए तो शायद कुछ हो जाए। फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। कृष्ण कुमार जी, आपको दिख रहा है? कृष्ण कुमार जी, आपको ऐसा दिख रहा है कि विकल्प नहीं है फिर भी बदलाव हो सकता है? विकल्प तो क्या है, मोदी जी का विकल्प नहीं है, लेकिन क्या है, अब तो अलग सब लोग मिलके 250 सीट और ज्यादा सीट मिल जाएगा तो क्या होगा, उस टाइम में बच के मिली जुली सरकार होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह का टाइम में जो हुआ है उस टाइम जो हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्म हुआ है, मोदी जी का विकल्प में ऑल इंडिया में कोई लीडर नहीं है। सही बात है। दो एक स्टेट में लीडर है, एक दो स्टेट में उसका नहीं। कृष्ण कुमार जी, विकल्प भले नहीं है, लेकिन देश के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। फिर वो कोरोना काल में पॉलिसी की बात की जाए, फिर मेडिकल कटौती की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कोरोना का बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल फ्लॉप है। पहले बीके पॉल ने बोला है 21 दिन का अंदर में चल जाएगा। आप यूट्यूब में जाएगा, बीके पॉल का सर्च कर देखिए, बोल दिया गया 21 दिन का अंदर में ये कोरोना चल जाएगा। 21 दिन तो हो गया, 21 मार्च अभी आ रहा है, ये तो मिलने नहीं हो रहा है। तो पहले क्या है, वैक्सीन प्रोडक्शन किया है विदेश में से, फॉरेन कंट्री में भेज दिया है। देश का लोग भिखारी हो रहा है, देश का लोग भूखा रहा है, देश का लोग प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और विदेश में चल जाता है। ये क्या मोदी जी का क्या इंटरनेशनल पॉलिसी है क्या? वैक्सीन लोग नहीं मिल रहा है, हम लोग को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी कर रहा है, फॉरेन विदेश को दे रहा है। तो रमेश जी, मेरा सवाल यही है, ये कि आगे 2022 में जितने भी चुनाव आएंगे वो सभी चुनाव में बीजेपी को ये मुद्दा नुकसान करेगा बहुत बड़ा, कि भाई देश में मेडिकल कटौती आ गई, लोगों को हेल्थ के बारे में बहुत दिक्कत आई। टोटली फ्लॉप है कोरोना के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लोग सही समझता है। रमेश जी बताएंगे। रमेश जी, जी देखिए, कोरोना का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठेगा और उत्तर प्रदेश में भी उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौतें हुई है, बेड नहीं मिले हैं, तो 2022 तक लोग भूल जाएंगे ना, वोटर्स भूल जाएंगे। भूलेंगे नहीं, इसलिए नहीं भूलेंगे। अब तो 6 महीने रह गए मुश्किल से, और तीसरी लहर आहट आ रही है, और तीसरी लहर को लेकर के कि हम इसका मुकाबला कर रहे हैं, हम ये तैयारी कर रहे हैं, तो वो मुद्दा भी जिंदा है, आप ध्यान रखिएगा। और ये विधानसभा में विपक्ष इसी को ही मुद्दा बनाएगी, इसमें भी दो राय नहीं है। रमेश जी, गंगा जमुना दोनों में क्या है, सारी डेड बॉडी आ रहा है, उत्तर प्रदेश से बंगाल तक डेड बॉडी आ रहा है, बहुत सारी डेड बॉडी आ रहा है यहाँ पर। हम लोग क्या करेगा? योगेश जी, ये गंगा का पानी जो लोग पीते हुए, तो अभी लोग उसका पैनिक है। अच्छा योगेश जी, आपको लग रहा है कि कोरोना का मुद्दा बनेगा 2022 के सभी चुनाव में? योगेश जी, बिल्कुल बनेगा, और इसका जवाब पड़ेगा, इसमें तो राय है। बशर्ते ये है कि इस मुद्दे की काट जो है बीजेपी। योगेश जी बोल रहे हैं, बोलिए योगेश जी। बीजेपी इसकी काट मेरा कहना ये है,
कोरोना को कंट्रोल करने में तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। लेकिन लॉकडाउन होने से कोरोना के जो और इफेक्ट है वो सब लोगों को मालूम है। जो श्रमिक लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको यहाँ से वहां जाना पड़ा और कितनी तकलीफ हुई ये भी सब लोगों ने देखा है। अच्छा, जिन लोगों ने अपना जान गंवाया उनके रिलेटिव्स थे, उनको मालूम है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, इसलिए हमारे स्वजन हमने गुमाए हैं। तो ये जो बात है लोगों के मन में एकदम हो गई है और 2022 तक तो क्या 2024 तक भी ये भूलने वाले नहीं है। नहीं रमेश जी अगर आप बोल रहे कि लोग भूलेंगे नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि वो तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बन जाती थी ना। केंद्र ने बोला था ना, मोदी जी ने बोला था कि इसकी कोरोना को काबू में लेने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। हाँ, तो अगर उन्होंने बोला तो, लेकिन जो अभी योगी के खिलाफ गुस्सा है तो वो भी कोरोना के कारण सबसे बड़ा गुस्सा है। कुछ आया गांव में जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि गांव में लाशों की लाशें हुई, गंगा के तट पर लाशें पड़ी हुई मिली हुई है। गांव में 40-40, 50-50 लोग मर गए और वहां पर न एससी न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुछ नहीं हुआ है। तो गुस्सा जबरदस्त गांव में भी है, शहर में भी है। और ये बात सही है, यहाँ पर मोदी योगी नहीं चलेंगे, यहाँ पर बीजेपी चलेंगे और योगी को भी टारगेट किया जाएगा। इसीलिए बिहार में 50 से अधिक जिलों में दौरा किया है योगी ने और ये कहा किसी तरह से लड़ेंगे, किसी तरह से करेंगे। उन्हें मालूम है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव उनके लिए बहुत रमेश जी जैसे गुजरात में बताया जा रहा है कि सेंट्रल में मोदी जी बैठे, इसलिए गुजरात में भी बीजेपी है, तो यहाँ तो बहुत अच्छे से कामगिरी करने के लिए सहाय मिलती है। तो उत्तर प्रदेश को भी ऐसा ही बताया जाएगा ना पूरे देश में कि भाई सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, तो दोनों का संकलन बहुत अच्छा है, बढ़िया है। नहीं, ये तो बताया जाएगा कि दोनों में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं जिससे जो त्राही मची है उसका क्या जवाब होगा। ठीक है, मोदी है, डबल इंजन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अगर कुछ चल रहा होता ठीक ठाक तो ये जो 1 महीने से वार्ता चल रही थी, कल 1 घंटे 38 मिनट अमित शाह से वार्ता हुई, आज लगभग 2 घंटे नड्डा से बातचीत हुई, आज 1 घंटा 20 मिनट मोदी से बात। ये सब क्या कारण है? ये सब कुछ वही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं ठीक चल रहा है और उन्हें मालूम है कि आने वाला। अच्छा, कृष्ण कुमार जी, अगर अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, 2022 में और जितेंद्र प्रसाद आए हैं तो उसकी इम्पैक्ट होगी नहीं होगी आगे आपने को देखने को मिलेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय की वापसी के आने के बाद कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा? क्या फर्क पड़ेगा टीएमसी को? कोई फायदा तो होने वाला नहीं? जरूर फर्क पड़ेगा। क्या है, ये टीएमसी पार्टी जब 1998 में गठित हुआ है, उस टाइम से मुकुल रॉय ने टीएमसी पार्टी का कंट्रोल कर, तो टीएमसी पार्टी का सारे में टीएमसी पार्टी का वो है एडमिनिस्ट्रेशन, टीएमसी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ देख रहा है। लेकिन आज क्या है, ये 3.5 साल उसका नहीं था, लेकिन अभी मुकुल आएगा तो क्या है, मुकुल राय ये सारी अच्छा लीडर है, ऑर्गेनाइजर भी है, ठीक है अच्छा काम करेगा। जी ओके, यहाँ पे चलो समय भी खत्म हो रहा है। यहाँ पे कृष्ण कुमार जी और रमेश जी और योगेश जी इस चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं और यहाँ पे સમય ખતમ हो रहा है। દર્શક મિત્રો, ચર્ચામાં છેલ્લે મૂળ ચર્ચા કરતા હતા આપણે કે આખા દેશમાં જે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચેની જે રાજનીતિમાં સમીકરણો જોવા મળી રહ્યા છે, વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યા છે, જે પ્રકારના બંને રાજ્યોમાં પક્ષ પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, તેને રાજકીય સમીકરણો સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો। और रमेश जी, कृष्ण कुमार जी और योगेश जी, आप तीनों हमारे साथ डिबेट में जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो फरी મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે। ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।